નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્લેગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ્સ શોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નીરજ ચોપરા ઇતિહાસ સર્જી દીધો અને ખાસ કરીને વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ જ્યાં ભારતનું નામ અમુક જ વખતે ગણતરીના પ્રસંગોએ લેવાતું હતું, ત્યાં એક ગોલ્ડ મેડલ ઉમેરીને નીરજ ચોપરાએ એક ઇતિહાસ સર્જી દીધો. ખાસ કરીને અત્યાર સુધીમાં જે મેડલ્સ ભારતે જીત્યા છે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપના, એ માત્ર 3 થાય છે આ મેડલ પછી. એટલે એટલો બધો જબરજસ્ત ભવ્ય ઇતિહાસ આપણો હતો નહીં, પણ હવે ક્યાંક નીરજ ચોપરાએ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને દુનિયાને દંગ કરી છે અને શરૂઆત એવી કરી છે કેમ લાગે છે કે હવે ભારતના ખેલાડીઓ ભવિષ્યમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરશે. અંજુ બોબી જ્યોર્જ અને નીરજ ચોપરા એકવાર સિલ્વર મેડલ અને એકવાર ગોલ્ડ મેડલ, આ 3 મેડલ્સ ભારતના ખાતામાં અત્યાર સુધી છે જ્યારથી શરૂઆત થઈ ત્યારથી. પણ હવે એમ લાગે છે કે એક નવો યુગ શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ ઇતિહાસ સર્જ્યો છે નીરજ ચોપરા, એના પર પણ વાત કરવી છે. એથ્લેટિક્સ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે એના પર પણ વાત કરવી છે. ખેલાડીઓ કેવી રીતે તૈયાર થાય છે, કેટલી મહેનત કરે છે, ઓલિમ્પિક્સમાં કેવી રીતે ભાગ લે છે, એની ઉપર પણ ચર્ચા કરીશું. આ બધા માટે મારી સાથે જો સેબાસ્ટિયન જોડાયા છે. જો, વેલકમ ટુ ધ શો. હા, જો સેબાસ્ટિયન વેરી સિનિયર કોચ સ્પ્રિન્ટ, ખાસ કરીને એમનું જે કહેવાય કે મહત્ત્વનું સ્પોર્ટ છે એના સિનિયર કોચ છે. અને આજે એમની પાસેથી આપણે ઘણું બધું એથ્લેટિક્સ વિશે જાણીશું. ખાસ કરીને આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ પહેલાં આવો એક નાનકડો રિપોર્ટ જોઈ લઈએ. વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં 40 વર્ષમાં સૌપ્રથમવાર ભારતના ભાલાફેંક ખેલાડી, ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ અને વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સમાં સિલ્વર મેડાલિસ્ટ નીરજ ચોપરાએ 88.17 મીટર સુધી ભાલો ફેંકીને 2023 વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને તમામ ભારતીયોને ગૌરવ અપાવ્યું હતું. આ સાથે જ આ સ્પર્ધામાં ભારત તરફથી 1થી વધુ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો છે. ત્યારે ભારતે અત્યાર સુધીમાં આ સ્પર્ધામાં માત્ર 3 મેડલ્સ જીત્યા છે, જેમાંથી એક ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલ નીરજના તથા એક બ્રોન્ઝ મેડલ લાંબી કૂદમાં અંજુ બોબી જ્યોર્જના નામે છે. जोश, कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा नीरज चोपड़ा का. और जैसे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जहां भारत का नाम बहुत ही कम लिया जाता था, वहां पर सुवर्ण अक्षरों में उन्होंने नाम लिख दिया. क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नीरज चोपड़ा की जो अचीवमेंट है उसके बारे में? सबसे पहले सभी दर्शक मित्रों को हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा. और वी ऑल हु आर इनटू वर्ल्ड एथलेटिक्स कोचेस, तो ये हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीशन होता है वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स. और जो भी वर्ल्ड एथलेटिक्स से रिलेटेड जो कोचेस हैं और जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक रंगमंच था जो 2 साल में अपने होते हैं हर साल. और इंडिया के तो बोले तो जैसे फुटबॉल के अंदर हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. लास्ट एशिया कप हमने जीता, तो एक बहुत ही खूबसूरत वो भी एक नज़ारा था. क्रिकेट तो हम ऑलरेडी कर रहे थे, और एक ये फील्ड था एथलेटिक्स जिसके अंदर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना सब कुछ कम करने के बाद भी अपने एथलीट्स उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते थे. और क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए ये गेम का ज्यादा प्रचार नहीं हो पा रहा था. लेकिन थैंक्स टू अंजू बॉबी जॉर्ज who was the first lady to get international medal for us, and then our hero and the legend for all of us, हमारे लिए और आने वाले कई पीढ़ियों के लिए, नीरज चोपड़ा के लिए. तो बहुत बहुत खुश हैं हम सब. और ये मेरे ख्याल से कई दिन तक ये हमारे वो दिमाग में रहेगा. We won't be able to come out of this joy and triumph what we had yesterday. नहीं, बट आपने बिल्कुल सही बात कही. आप जिनको बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हो और कई बार बातचीत होती है अंजू मैम से, तो अंजू मैम और अब तक का जो फासला है मेडल्स का वो बहुत लंबा है. तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो फासला है वो अब कम हो, और जिस तरह से इतने साल नहीं होने चाहिए कि जितने साल हमको ये मेडल लाने में हुए हैं, 2022 और 2023 2 मेडल्स हमारे बैक टू बैक आए, लेकिन उसके पहले जो है बहुत ही लंबा फासला रहा. जोश, बिल्कुल बिल्कुल.
इसमें मैं ये कहना चाहूंगा अशोक जी कि ये फासला कहीं लंबा रहा, लेकिन अगर आप देखा जाए तो इंडियन एथलेटिक्स ग्रास रूट लेवल से भी काम करना शुरू किया है, और उसी का नतीजा है कि ये बार बहुत कुछ, हम सिर्फ एक मेडल को देख रहे हैं जो एक्सपेक्टेड ही था, शायद सिल्वर हो सकता था या गोल्ड हो सकता था, इतना ही था, बट वी वेर वेरी श्योर दैट नीरज का तो अपना एक मेडल है। लेकिन ये बार हमारा और भी मेडल का एक्सपेक्टेशन था, तो उसमें से एक सबसे ज्यादा ये था लॉन्ग जंप के अंदर श्रीशंकर के साथ एडलिन दोनों दोनों क्वालिफाई करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीशंकर कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द लॉन्ग जंप। और जितना कि अपने एडलिन जो जंप करते थे, जिसके हिसाब से अगर उसने यहाँ पे भी अगर किया होता तो श्योर एक मेडल तो अपना पक्का ही था, वी वेर ऑन द पोडियम। तो उसमें एक थोड़ा ये हुआ कि भाई नहीं आ पाया। अगर दूसरा मैं कहूंगा तो नीरज चोपड़ा के साथ और भी दो जने थे, मनु था और जेना, और जेना का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा, क्योंकि जेना ने भी खुद अपना पर्सनल बेस्ट पीबी दिया है वहां पे, और ये पीबी अपने नेशनल लेवल पे नेशनल कंपटीशन में देना एक और बात है, लेकिन ये एक वर्ल्ड एथलेटिक्स, इससे बड़ा कोई मंच नहीं है, और इससे बड़े मंच पे अगर जब आप देते हो अपना पर्सनल बेस्ट नया, तो वो भी बहुत ही सराहनीय है। और दूसरा और चीज ये था कि अगर आपने देखा होगा कल अपना फाइनल हुआ, जिसके अंदर हम 5th फिनिश थे 4x400 में भी, जो कि हम पहले तो हीट आउट ही होते थे, डिडंट इवन क्वालिफाई फॉर इट। लेकिन अगर आपने हीट में लास्ट रमेश जो था अपना, रमेश जो लास्ट एंकर था अपना 400 मीटर वाला, वो रन कर रहा था टुवर्ड द लास्ट कर्व पे, और उसने थोड़े सेकंड्स के लिए, मे बी फॉर 2 सेकंड्स या 3 सेकंड्स, ही हैड ओवरटेकन इवन यूएसए। तब जाके आपने सुना होगा कमेंटेटर बोलने लग गया कि भाई अपने इंडिया इज आल्सो कमिंग इनटू इट लाइक नो, एंड देन वी क्वालिफाइड। तो अगर यूं देखा जाए तो अपने ग्रासरूट लेवल से जूनियर अगर आप देखोगे, इंडिया का बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस है, मेडल भी है वहां पे, लेकिन ओनली थिंग इज वी आर वन स्टेप बिहाइंड दो जूनियर मेडल्स, वी आर ट्राइंग टू पुश इट इनटू द सीनियर। तो जिस दिन वो भी हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत इन लोगों ने कर दी है, तो बहुत ही वी आर लाइक नो थिंकिंग पॉजिटिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ एथलेटिक्स। राइट, टेल मी वन थिंग जोश, क्योंकि जिस तरह से ओलंपिक्स में हमारा प्रदर्शन रहा है, एथलेटिक्स की अगर बात करें तो इतना अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद अगर नॉर्मन प्रिजार्ड के दो जो मेडल्स है वो है, और बाद में नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता वो है, तो यहाँ पर भी काफी लंबा फासला है और बहुत ही कुछ काम करना है इस पर्टिकुलर में। लेकिन मैं अभी एशियन गेम्स देख रहा था, तो एशियन गेम्स में वी आर डूइंग वेरी वेल, इवन इन एथलेटिक्स वी आर गेटिंग मेनी मोर मेडल्स, बहुत ही मेडल्स हम जीते हैं। क्या हम एथलेटिक्स जो हम एशियन गेम्स में कर पाते हैं और ओलंपिक्स में और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता है, इतना बड़ा फासला है कि अवर after getting so many medals in Asian Games, we are not able to fetch few medals in athletics in international competition? अशोक जी, इसमें ऐसा है कि अपना एशियन लेवल का जो कंपटीशन है और वर्ल्ड लेवल का जो कंपटीशन है या यूरोपियन लेवल का कंपटीशन है, उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि द लेवल ऑफ कंपटीशन, द लेवल ऑफ एथलीट विच द वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रिंग्स इन और द यूरोपियन या वर्ल्ड चैंपियनशिप में आते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो उसको कवर अप करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गेम है, ये वो टीम गेम नहीं है कि भाई एक इसके अंदर आपने क्लिक कर दिया और आपके आ गया। तो इसमें तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना पड़ेगा। और अभी तक ऐसा होता था कि वी वर लैकिंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप देखो, आज हमारे इतने अच्छे, अभी गुजरात के टॉप बच्चे हैं मेरे अंडर में, लेकिन हम अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमको एक अच्छा ट्रैक अवेल करो ट्रेनिंग के लिए। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर मेडल आप चाहते हैं, तो आपके गवर्नमेंट और सिस्टम को, एसोसिएशन को, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, इन बच्चों को जो आगे जाके मेडल देने वाले, उनके लिए आपको एक पाथ बनाना पड़ेगा।
जो कि अभी धीरे धीरे बन रहा है। आई विल नॉट से पूरी तरह हो रहा है, क्योंकि अभी भी स्ट्रगल हो रहा है। देर आर ग्राउंड, देर आर, बट देन इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द एथलीट, तो कोई मतलब नहीं है। और फिर हम ऐसे जगह पे जाके अपने फिर जो लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलता है कि भाई डेप्थ क्या है और इसका ग्रास रूट लेवल पे क्या आपको काम करना है। तो ग्रास रूट लेवल पे अभी काम हो रहा है। तो मेरे को पूरा इच्छा है, आई मीन विश्वास है कि इस तरह से अगर जाएंगे, फैसिलिटीज देंगे, अच्छे फॉरेन कोचेस अपने पास आएंगे और उनके अंडर में अपने कोचेस भी अपना डेवलप करेंगे और साथ ही साथ अपने एथलीट्स को और देश को भी आगे डेवलप करेंगे। देखिए डिफरेंस मैं बताऊं, 254 एथलेटिक्स में 254 मेडल्स हमने पाए हैं एशियन गेम्स में। देन कमिंग टू ओलंपिक्स वी हैव गॉट 3, एंड व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इट इज 3. So the conversion ratio from Asian Games player to any international upgradation, don't you feel it has to increase a bit? यस, डेफिनेटली। इसमें और एक पहलू भी है सर, कि जैसे हम कहते हैं कि जूनियर लेवल में हमारे, अगर आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पे भी अपने काफी सारे, लाइक नीरज वाज फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, देन ही बिकेम इनटू द सीनियर वर्ल्ड चैंपियन। तो ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अर्लियर देयर वेर मेनी ऑफ आवर जूनियर्स हु वर डूइंग गुड, बट देन ऐसा भी होता था कि ड्यू टू सम मैल प्रैक्टिस, ठीक है, ओवर एज के वजह से वो खेल लिया जो भी हो, लेकिन फिर जब वो सीनियर लेवल पे आते हैं तो ऑलरेडी जो पीक लेवल होना चाहिए वो सरपास कर गया होता है। तो उसके वजह से फिर उधर से ज्यादा वो आगे नहीं कर पाते। तो वो एक रीजन था। लेकिन अब जो कि बायोमेट्रिक्स आ गया है, यंग एज से आपके एज को टैप किया जा रहा है, सब कुछ टैप किया जा रहा है। तो अब जो भी बच्चा जूनियर लेवल पे अगर मेडल दे रहा है और वो कंटिन्यू रख रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ नो एक्सटर्नल थिंग अफेक्टिंग हिम, मे बी इट इज रिलेटेड टू डोपिंग हो या जो भी कुछ हो, अपना बच्चे या अपने एथलीट स्टेप बाय स्टेप वो आगे ही बढ़ रहा है। और मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स के लिए भी जितना हो सके फंडिंग करे, ताकि मैक्सिमम जो इनको ये मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो इनको मिले, ताकि अपना ये मेडल का जो रेशियो जो है एशियन में इतना सारा, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जाते ही हम नहीं वहां दिख रहे हैं, तो वो धीरे धीरे दिखने लगेगा, जरूर दिखने लगेगा। अच्छा टेल मी वन थिंग, आप तो स्प्रिंटर्स तैयार करते हैं, आपके अंडर में जो बच्चे अभी खेल रहे हैं या तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या लगता है कैसा भविष्य उनका, किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं और कितनी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं वो लोग? जहां तक मेहनत की बात है सर, क्योंकि बीइंग अ वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 2 कोच, वी हैव बीन अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज, और उसके अलावा भी आई माई सेल्फ अपडेट माई सेल्फ डेली। लाइक मेरे काफी सारे फॉरेन कोचेस के साथ रेगुलर टचिंग में मैं रहता हूँ, उनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ उनसे भी पूछता हूँ। वो हमसे कहीं आगे हैं तो उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ कि किस तरह से अपना ट्रेनिंग मुझे करना चाहिए। तो उस तरह से देखते हुए वो बताते हैं उनके वहाँ किस तरह से कर रहे हैं, और वही चीज मैं अपने बच्चों को भी करा रहा हूँ यहाँ पे। और जिससे कि आप देखोगे अपने गुजरात लेवल के अंदर, क्योंकि हम गुजरात में हैं, तो अपना खेल महाकुंभ के अंदर आई एम वेरी प्राउड टू से दैट बीइंग अ प्राइवेट एकेडमी, हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर हमारे बच्चे वहां पे भी ला रहे हैं। और बाकी जो भी बच्चे आ रहे हैं वो तो डीएलएसएस या एकेडमी के हैं, जो सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं फुल फैसिलिटी के साथ। एथलेटिक्स ट्रैक है उनके पास, अच्छे कोचेस हैं, जिम है, डाइट है, सब कुछ है। तो मेरे बच्चे अगर आ रहे हैं तो उनके पास तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कमी है। वी आर हंटिंग, वी आर बेगिंग टू द गवर्नमेंट। हम बोल रहे हैं अभी जस्ट लास्ट वीक ही वी हैव गॉन टू द ऑफिस ऑफ आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हर्ष संघवी सर, जस्ट टू रिक्वेस्ट हिम कि हमारे बच्चों को गुजरात यूनिवर्सिटी का जो ट्रैक है वो हमको अवेल कराएं, या जो भी ओडा के गार्डन आई मीन ट्रैक है उसको अवेल कराएं। तो अगर वो होगा तो हमारे पास नॉलेज है, लेकिन इसको करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी थी, वो नहीं मिल रहा है। तो यही एक चीज है। बाकी आप देखो, हर एक बार आप देखोगे हमारे बच्चे पेपर के अंदर भी जितने भी कंपटीशन हो रहा है, कैप्टन के एथलीट्स अगर 3 गए हैं तो 3 पोडियम पे ही है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद देम द वे दे आर गोइंग। एंड हमारे ये बार एक बच्ची इंडिया कैंप में भी थी,
अंडर 14 का जो डिडजेम है सिलेक्ट हुई, और वहां पे कैंप में सरस्वती चंद जो अपने इंडियन कोच है, उनका कहना था कि सर इसको अगर इसी तरह से रखेंगे, ही इज अ डेफिनेट ट्राई कलर एथलीट फ्रॉम यू। तो अच्छा लगता है कि भाई अपने जो भी बच्चे हैं ये एक इंडिया लेवल के एथलीट बनने लायक बन रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, कोचेस लाइक यू आर देयर, आप इतने क्वालिफाइड है, एट द सेम टाइम देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वालिफाइड कोचेस अराउंड। क्या आपको लगता है कि अभी भी फॉरेन कोचेस का इंक्लूजन ये टीम में होना चाहिए? विल दैट रियली मेक अ डिफरेंस? अगर फॉरेन कोचेस आते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए, या तो आप जो मेहनत करते हो उसको आगे ले जाने को, विल दैट बी एडिशनल एडवांटेज? बिल्कुल होगा सर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड एडवांटेज, बिकॉज आई विल टेल यू इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम द एटीट्यूड। आप देखो, आई एम नॉट बायस्ड ऑन एनी कोचेस, डोंट टेक माय डियर फ्रेंड्स एज पर्सनल थिंग, लेकिन मैं खुद देखता हूँ अपने कोचेस को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बोलते हैं कि कोच अब जब ट्रैक पे आता है उसका एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। लाइक नो, इफ आई कम विथ माय मुंह में पान होगा या वहां सिगरेट पी के आ रहा होगा, आई मीन आई माई सेल्फ इज नॉट इनटू दैट डिसिप्लिन, or sports is totally on discipline. You have to have that discipline. Secondly, the knowledge you should have when you impart that knowledge to your athletes. तो वो होना चाहिए। आप आज मैं बताऊं, आज एक कंपटीशन था, because it is there, I want to put this so that the senior coaches and all the admin people who are watching this program, they also know. I don't want to name who it was. 100 मीटर का रेस था, जो स्टार्टर है हमारे स्पोर्ट्स के टीचर्स थे, और वो एक प्रोफेसर भी है, मुझे पता है, और उनको ये नहीं पता 100 मीटर कहाँ से स्टार्ट होता है। मेरी बच्ची का टाइमिंग है 13:36 में, वो जब दौड़ी तो 15.7, जैसे मैंने बोला यार इतना स्लो तो तू है नहीं, तो उसने बोला सर मुझे 110 से स्टार्ट कराया, जो हडल्स का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके जो कोचिंग कराते हैं, आपके गवर्नमेंट, आपके सिस्टम को ये देखना जरूरी है कि आपके पास अगर उस टॉप लेवल के कोचेस आपके इर्द गिर्द हो, तो पॉलिटिक्स और अपना मतभेद को हटाकर उन कोचेस को आपको आपके टीम में लेना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो आपको डेवलप करते हैं। अपने गुजरात के अंदर था कोच में अजीमोहन सर। अजीमोहन सर के टाइम पे देखो, जितने भी अभी हम जो भी मेडलिस्ट देख रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर ऑल अंडर हिज एथलीट। उनके जाने के बाद 4 साल के बाद आप मुझे बताओ एक नया कोई एथलीट बना है नेशनल पे आने वाला? कोई नहीं है। जो भी है हमने जो प्रोड्यूस किया था, बिकॉज ही वॉज माई बडी। हम अभी भी एक दूसरे से जो भी एक्सचेंज करते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के रिलेटेड ये सब, तो हम उस टाइप की बातें करते हैं। तो फॉरेन कोचेस जब आएंगे तो दे हैव अ लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, तो वो हमें बताएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोच जितना ऊपर चढ़ता है उतना ही वो नीचे गेट्स ऑन टू द बेस लेवल। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है कि एक कोर्स करके आ गया तो वो ऐसे समझने लगता है कि भाई उसको सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं होता है। जितना आप सीखते हो और आपको सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को है, और जितना आप कोच को ज्ञान होगा, आप जितने सीखेंगे इतने बढ़िया आप अपने स्टूडेंट को तैयार कर पाएंगे। और कम टाइम के अंदर, जैसे आपने कहा कि इतना लंबा टाइम हुआ, इसलिए लंबा टाइम हो रहा है क्योंकि हमारे पास वो मॉडर्नाइजेशन, जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज के अंदर ट्रेनिंग होती है, कम टाइम के अंदर वो लेते हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी मैंने कहीं देखा है कि पुराना स्टाइल ही है, रगड़ो 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 रगड़ो। दे डोंट नो अबाउट द डाइट, दे डोंट नो अबाउट द स्पोर्ट्स साइंस। अभी जो नया टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ है, शेड्यूलिंग चालू हुआ है, रेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट, कोई नहीं पता है। तो ये सारे चीजें आपको एक फॉरेन कोच, क्योंकि वहीं से हम सीखते हैं, तो उनका होना, उनका मार्गदर्शन होना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो आई विल ऑलवेज से कि होना ही चाहिए, और उनके थ्रू हमारे कोचेस को और डेवलप होना चाहिए। अच्छा, नाउ वी विल बी कंक्लूडिंग द प्रोग्राम। अब ये बताइए, जोश के जिस तरह से एक नया इतिहास रचा गया है, एक बहुत ही जबरदस्त लहर चल रही है पूरे देश में, एथलेटिक्स सब खुश है, जो सीख रहे हैं या तो दौड़ रहे हैं या तो एथलेटिक्स से जुड़े हैं, वो भी सब खुश है। अब भारत को खुशियां मिलनी जो शुरू हुई है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कुछ बातें कही इंफ्रास्ट्रक्चर की, आई फुली एग्री विथ यू। इफ यू डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कांट प्रोड्यूस द हीरोज और यू कांट प्रोड्यूस द प्लेयर्स ऑफ दैट कैलिबर, बिकॉज यू हैव टू फाइट द वर्ल्ड, यू आर नॉट गोइंग टू फाइट ओनली इन गुजरात। तो पहली बात है, तो क्या हमें अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, बिकॉज स्पोर्ट्स माहौल तो चल रहा है, ये तो दिख ही रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है,
स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और अदर पैरामीटर्स गोइंग इन वन डायरेक्शन टू एंश्योर के सबसे ज्यादा मेडल्स आए। तो क्या आने वाले दिनों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जो एक्सपर्टीज हमारे पास है, जो कोचेस हमारे पास है, क्या हम ज्यादा एथलीट प्रोड्यूस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर, बिल्कुल कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले ऑल ओवर में बोलूंगा, ग्रासरूट लेवल से, राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे जोन्स होते हैं, वार्ड्स होते हैं, वहां से। लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना जरूरी होगा, एसोसिएशन को ये देखना जरूरी होगा कि इतने सारे कोचेस हम डेवलप कर रहे हैं, कोचेस प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इन कोचेस का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। इन कोचेस को तुम यूटिलाइज करो राइट फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल, जहाँ पे जो बच्चा दौड़ता है, जीतता है, उसी को ही सिलेक्ट किया जाए, ना कि मैं खड़ा हूं तो मेरे जो बच्चे उसको मैं पकड़ के फर्स्ट कर रहा हूँ, सेकंड कर रहा हूँ। एक ये। सेकेंडली, हमारे कोचेस जो ऊपर के लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर एज वाइज बच्चों को लेकर काम करें। हमारा मेहनत तब दिखेगा जब मैं प्रॉपर एज वाइज से करूं, ना कि एक 21 साल के बच्चे को लाऊं, 22 साल के बच्चे को लाऊं और 14 में खिलाऊं और वहां पे मेडल दिखा दूं और सबके सामने मेरी वाह हो जाए। उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक साल बाद, 2 साल बाद वो पकड़ा जाता है, फिर पता चलता है कि वो वहां पे भी ओवर एज था। तो ये मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये है ग्रासरूट लेवल, ये मेन इसका मुद्दा यही है। अगर आप इसको अगर टैप कर सकते हैं, प्रॉपर एथनिक कोच, एथिक्स वाले कोच होंगे, ट्रूथफुल, और जो बोलते हैं ना अपना जान लगा देते हैं अपने काम के अंदर, ऐसे डेडिकेटेड कोचेस को लेकर आप टीम बनाओगे तो डेफिनेटली अपना इंडिया नेक्स्ट लेवल पे है, डेफिनेटली। Chale, thank you so much, Jose, for joining and describing plenty of things. Of course, we have congratulated Neeraj Chopra and we have congratulated the whole team. But the fact is कि जिस तरह से थैंक यू। તો દોસ્તો ક્યાંક ને ક્યાંક નીરજ ચોપરાએ તો મેડલ જીતી લીધો, ગોલ્ડ મેડલ જીતી લીધો, ઇતિહાસ સર્જી દીધો, પણ ઇતિહાસના દરેક પાના ઉપર ભારતનું નામ લખાય એવી ક્યાંક અપેક્ષાઓ, એવી ક્યાંક આશાઓ એ નીરજ ચોપરાએ જન્માવી છે। એના માટે જે પ્રયત્નો કરવાના છે, જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કરવાનું છે, જોશે કીધી બહુ સાચી વાત કરી કે તમારે ડેડિકેટેડ થવું જ પડશે, તમારે ડિસિપ્લિન થવું જ પડશે। તમે કોચ છો તો કોચ તરીકે તમારે 100% આપવું પડશે। અને ખાસ કરીને એમને એ પણ વાત કરી કે ફોરેન કોચિસ અથવા તો જે ગુજરાતમાં જો વાત કરીએ તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે બનીને પડેલું છે, ઉપયોગમાં આવતું નથી, આ પણ એક બહુ મોટો વિષય થઈ ગયો છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ દરેક વસ્તુ અવેલેબલ થાય ખેલાડીઓને, ખેલાડીઓ એના ઉપર તૈયાર થાય, કોચિસ જબરજસ્ત મહેનત કરે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તમારી પાસે છે, તમારી પાસે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે, સારા કોચિસ હોય તો ડેફિનેટલી એક નહીં પણ 1000 નીરજ ચોપરા ભારત પેદા કરી શકશે અને ઘણા ખેલાડીઓ ગુજરાત પેદા કરી શકશે। નમસ્કાર।